السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید سلیم محمد۔ آپ کے سامنے میں کینسر کے بارے میں کینسر ایلوپیتھک ورسز یونانی، یعنی ایلوپیتھک اور یونانی میں کیا تھا، کازز میں اور ٹریٹمنٹ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کینسر کے بارے میں۔ ایک طرف ایلوپیتھک کا نظریہ اور دوسری طرف یونانی کا نظریہ۔ ایلوپیتھک کا نظریہ یہ ہے کہ کینسر کا سبب، اس کا جو کازز ہوتے ہیں وہ ڈی این اے میوٹیشن، مطلب سیل کے اندر جینیٹک لیول پر بدلاؤ ہو جاتا ہے اور سیل اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ یہ سیلز رکتے نہیں بلکہ ملٹی گروتھ بڑھتے رہتے ہیں اور ایک ٹیومر بنا دیتے ہیں۔ ٹیومر ایک گڈھا بن جاتا ہے۔ یہ سیلز رکتے نہیں اور ایک ٹیومر بڑھ کے ایک ٹیومر بن جاتا ہے۔ اس کے جو رسک فیکٹر ہیں، وہ جو کازز بھی بتائیے اس کے ایلوپیتھی کے، وہ ہو سکتے ہیں سگریٹ، شراب کی عادت، کچھ انفیکشن جیسے ایچ پی وی اور ہیپاٹائٹس، اور کچھ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے اور ریڈیشن کی وجہ سے۔ موٹاپا بھی اس کا ایک کاز ہے اور کچھ جینیٹک فیکٹرز۔ ٹریٹمنٹ میں ایلوپیتھی سیدھا کینسر سیلز کو ٹارگیٹ کرتا ہے۔ سرجری سے ماس یا اس کا جو گڈھا ہے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیمو تھراپی دیتے ہیں، سیلز کو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ ریڈیو تھراپی سے لیزر یا ریڈیشن دیتے ہیں۔ امیونو تھراپی اور ٹارگیٹڈ ڈرگس بھی یوز کرتے ہیں۔ تو ڈائریکٹلی ان کا جو فوکس ہوتا ہے ایلوپیتھک سسٹم کا، وہ کینسر سیلز کو ڈسٹرائے کرنا۔ اب رہی یونانی کاز، اب ہے یونانی کا کیا کانسیپٹ ہے کینسر کے بارے میں۔ الحمدللہ 30 ایئرس ایکسپیرئنس مجھے ہے اور میں کینسر کا ٹریٹمنٹ کر چکا ہوں الحمدللہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے ذریعے۔ تو اب یونانی سسٹم کا نظریہ کیا ہے، سن لیجیے، یہ بھی سن لیجیے آپ، دیکھیں یونانی سسٹم کا نظریہ کیا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے یونانی سسٹم کئی ہزاروں سال پرانا ہے۔ یونانی کے مطابق کینسر کا جو کاز ہے وہ ہے سوئے مزاج۔ سوئے مزاج کا مطلب ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ مزاج کا بگڑ جائے، اور سوئے ترکیب یعنی مزاج اور اسٹرکچر، جیسا سیلز گروتھ کے اسٹرکچر میں فرق ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو ہم بولتے ہیں ٹیومر۔ جو ٹیومر ہوتا ہے، جو گڈھا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے کیونکہ سیلز گروتھ ہوتے ہیں، تو اس کے اسٹرکچر میں بھی آپ کو فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی مزاج اور اسٹرکچر کا امبیلنس، جب اخلاق جو ہوتے ہیں ہمارے میں 4 اخلاق ہوتے ہیں: دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ جو ہمارے جسم میں خون ہوتا ہے، خون کے اندر 4 اخلاق ہوتے ہیں:
हमारा जो बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड है, हमारा सिस्टम जो है बॉडी का इन अखलाक पर डिपेंड है, जिसको खून, बलगम, सफरा और सौदा कहा जाता है। अगर इसमें अगर बिगाड़ आ जाए या इसमें कुछ फसाद हो जाता है तो जिस्म में तब्दीलियां पैदा। अब कैंसर का जो सबब है वो दम, बलगम, सफरा और सौदा, चार किस्म में फसाद आता है, मतलब बिगाड़ आता है, इसमें अबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है। खास तौर पे सौदा, जो सौदा है, जो किल्त कहलाता है, चारों किल्त में से एक किल्त होता है सौदा, जिसका कॉन्सेप्ट किसी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है। इसका जो सौदे का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ यूनानी सिस्टम में, किसी और सिस्टम में नहीं। और दूसरे सिस्टम में जो है वो खून का नजरिया है, बलगम का नजरिया है और सफरे का बाइल, बलगम, मतलब फ्लेम और खून। लेकिन यूनानी में एक और है जिसको कहते हैं ब्लैक बाइल, उसको कहते हैं सौदा। ये सौदा गलीस में फासिद हो जाता है तब सरतान यानी कैंसर पैदा होता है। समझ रहे बात को? ये चारों सिम्टम दम, बलगम, सफरा और सौदा में जब बिगाड़ पैदा हो जाता है, इसमें कुछ तब्दीली पैदा हो जाती है और ये गलीज हो जाता है और ये फासिद हो जाता है, तब जाके कैंसर पैदा होता है। इसका जो दूसरा सबब है वो कुव्वत मुदब्बिर बदन, यानी जो इम्यूनिटी होती है हमारी, वो इम्यूनिटी में फर्क आ जाता है। बदन की जो नेचुरल कुव्वत है, नेचुरल हीलिंग पावर है, ये कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी अपना खुद सेल्स अपना मल्टीप्लोर शुरू कर देती है। अब यूनानी ट्रीटमेंट का मुख्तलिफ जो तरीके इलाज है वो क्या है, ये भी सुन लीजिए। इसका जो इलाज है वो है तनकिया और फासिद जो अखलाक है उसको निकालना। मैं पहले बता दिया आपको, ये जो होता है फासिद सौदा जो होता है गलीज हो जाता है, तो हम जो दवाएं देते हैं वो दवाओं से मकसद हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, उस सौदे, उस गलीज सौदे को, एक मानो में बोलिए वो जो कैंसर सेल जो ग्रोथ हो रहे हैं वो सौदा है, उस सौदे को हम निकालना है, क्लींजिंग करना है, डिटॉक्स करना है। तो ये क्या तरीके से करेंगे आप? ये तरीका हमारे पास है फसद। फसद माने वीनस सेक्शन, उसको जो रग होते हैं, ये रगों में से खून निकाला जाता है, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट पे मुख्तलिफ रगें होती हैं, उसके जरिए खून निकाला जाता है। और हिजामा, कपिंग थेरेपी, इस कपिंग थेरेपी से जो फासिद मवाद है, जो फासिद खून है, जो केमिकल बन गया है, बैड केमिकल बन गया है और सेल्स में ग्रोथ हो रहा है और खून में जो कैंसर सेल्स है वो दौड़ रहे हैं, तो हिजामा के जरिए वो सेल्स, वो गलीज मवाद वो बाहर निकल जाता है। जिस तरीके से आप कीमोथेरेपी देखिए और रेडियोथेरेपी देखिए, उन सेल्स को जला दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब यूनानी तरीके में उसको निकाल दिया जाता है, वो जरिया है हिजामा और फसद। और यूनानी सिस्टम जो मेडिसिन हम देते हैं उसको पहले मुंजिज किया जाता है, उसको बोलते हैं मुंजिज सौदा। उसके बाद हम देते हैं मुंजिज के बाद, मुंजिज के माने पकाना, जहां जहां गलीज सौदा है वहां उसको उन्हें पकाता है, पकाने के बाद उसको रकीक कर देता है, पतला कर देता है। उसके बाद हम देते हैं मुश्किल सौदा, जो सौदा
जिस्म में है उसको हम परगेटिव देके उसको बाहर निकाल, ये तरीका यूनानी सिस्टम है। और उसके बाद मिजाज को तब्दील करना, उसका जो मिजाज है उसको तादील मिजाज कहते हैं। तादील मिजाज, मिजाज को बैलेंस करना और तब्दील। उसके बाद जब मुस्हिल देते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक और देते हैं, तबरीद कहा जाता है, ताकि उसकी वजह से जो कमजोरी पैदा होती है उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, मुखवी दवाएं दी जाती है जो कुव्वत मुदब्बिर बदन यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है, और मुहल्लिब यानी और हल करने वाली दवाएं आपको दिया जाता है और मुफत्तित किया जाता है ताकि उसको तोड़ सके। जरिए जो ग्रोथ हो रहा है सेल्स का, उस सेल्स को तोड़ सके, और जो इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सोजिश जिसको कहते हैं, उसको दूर कर। साथ में हम ग़िज़ा और तदबीर एंटी ऑक्सीडेंट्स में दवाएं और साफ ग़िज़ा, उसके बाद हम इसको स्ट्रेस कम करते हैं, कम करना हमारे इसमें ट्रीटमेंट में शामिल है। एक्सरसाइज है और हिजामा, मसाज, ये सब शामिल होते हैं। यानी फोकस है, एक फोकस है हमारा कि बदन को गलीज मवाद से साफ करना और मिजाज को दुरुस्त करना और इम्यूनिटी को इतना बढ़ाना कि वो कैंसर सेल्स न बना सके और उसको न पैदा कर सके और कैंसर सेल से लड़े। ऐसे मेडिसिन हम देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे यूनानी मेडिसिन हैं जो shows medicinal plants, यूनानी मेडिसिनल प्लांट shows एंटी कैंसर एक्टिविटी। इसका साइंटिफिकली जो यूनानी मेडिसिन हैं उसका साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये एंटी कैंसर हैं, तो उस ऐसी मेडिसिन को हम इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट्स को। तो दोस्तों, एलोपैथी वेरी गुड ट्रीटमेंट, हम किसी को नहीं बोलते क्योंकि वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। जो इमरजेंसी जो लोग आते हैं उनके लिए बेहतरीन जरिया। अब चूंकि कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी जो होता है वो अक्सर क्या होता है कि जब स्टेज 4, 2, 3 जब आ जाता है, या कुछ लोग ज़ईफ होते हैं, जो उम्र रसीदा होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना। तो ऐसे लोगों को आप अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे यूनानी मेडिसिन की तरफ आप आ सकते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल को बढ़ा सकते हैं और उनकी जो तकलीफ है उसको आप कम कर सकते हैं। दोस्तों, एलोपैथिक कैंसर के असबाब जीन्स कॉज और मोटेशन, सेल्स का बढ़ जाना, ग्रोथ होना, और इसका जो इलाज है उसके डिस्ट्रॉय करना सेल्स। और यूनानी में जो कैंसर सिस्टम का जो इलाज होता है, कैंसर का जो इलाज होता है वो है मिजाज को तब्दील करना, इखलास से पाकीज़ा जो गलीज मवाद है जो कैंसर सेल्स में मुब्तला हो गए हैं उनको निकालना, जामा के जरिए, बसत के जरिए, मुसिल देकर उसको निकालना, और बदन को फासिद मवाद से पाक करना और मिजाज को बैलेंस करना और मजबूत बनाकर इलाज करना। इन दोनों सिस्टम का अपना अपना रोल है। तो यूनानी सिस्टम भी एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है जो आपके कैंसर को
का इलाज किया जा सकता है। इसमें प्रिवेंशन, अब कैंसर किसी को नहीं आना है तो भी हमारे पास मेडिसिन है, वो आप इस्तेमाल करने से आइंदा चल के आपको कैंसर भी नहीं आता। प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। तो हमारे पास जो दवाएं हैं और हिजामा है और पसंद है, आप ये अगर हिजामा कराते जाएंगे तो फासिद मवाद जो खून है वो निकलते चले जाएगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो इलाज होता है कैंसर का वो हिजामा, पसंद और मेडिसिन के जरिए किया जाता है। जिस किसी को भी कैंसर हो वो एलोपैथी की तरफ जाना चाह रहे हैं, वेलकम, आप जाइए वहाँ पर, आप इलाज कराइए। अगर आप चाहते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन की तरफ आप आना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यूनानी मेडिसिन के लिए इलाज कराना मकसूद है आपका, तो आप हमसे रब्ता पैदा कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक है अल हिजामा यूनानी क्लिनिक, जानकी नगर कॉलोनी, गेट नंबर 2, टोल चौकी, और मेरा फोन नंबर है 93924396। अपने सारे रिपोर्ट के साथ आप तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह मशवरा करेंगे, जो मुफीद मशवरा है उस पर हम चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों की तकलीफ दूर हो और आप अच्छा इलाज की तरफ अल्लाह ताला आपको रुजू करे और आपका इलाज हो जाए, आपको शिफा हो जाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करते हुए हमको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल हिजामा यूनानी क्लिनिक, जानकी नगर कॉलोनी, गेट नंबर 2, टोल चौकी, 93924396। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आप लोग इस जो मैसेज मैं दिया हूँ आपको, इसको आप दूसरों तक पहुँचाइए, जो कैंसर में मुब्तला हैं या कैंसर को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं उन तक पहुँचाइए और आप उनको पहुँचाकर एक मैसेज दीजिए उनको कि ये इस तरीके से आप कैंसर के लिए एलोपैथी के साथ साथ आप यूनानी मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।